Hello everyone, welcome back. So in this video, what we're gonna see is reflection of the wave. So we'll just quickly revise. Last class what we studied is how we represent the wave. So most generalized format of the representation of the wave is capital A, sinusoidal, or you can also write the cos also. Remember, so sorry, I have habit of writing sin omega t. So sin kx minus omega t. Or you can also write, if it is going from negative side, then you can write plus also. So where omega is the angular frequency, okay, and you have k. What is it? How do you define k? K is nothing but 2 pi lambda, where lambda is the wavelength. Okay, so you can also prove this with a simple thing. Means if someone is more disturbed ki v कैसा आया, so v is nothing but lambda displacement by time, isn't it? V is nothing but displacement or distance by time. यहाँ पे wave travel कर रहा है आगे, तो वो उसका wave length है basically. So wave length by time. So v is equal to wavelength क्या है? Lambda divided by time. So v is, if you just divide multiply and divide with the 2 pi, so you can just write 2 pi by t and lambda by 2 pi. So this quantity we write as a k. So if you just see, we define k is equal to 2 pi by lambda, and we also know one thing, that omega, what is omega? We also know omega is nothing but 2 pi by t, isn't it? So substituting this here and substituting this here, we can just write this as a omega by correct. So we can just write omega by k. So try to understand this simple fact. Okay, so this is very simple, and it can be easily proved. So this is nothing but speed. Now let's go to the reflection of the wave part. So when we talk about the reflection of the wave, so basically हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि अगर एक वेव यहाँ से शुरू हुई है, कहीं पे वो टकराती है, तो वापस कैसे आ रही. So there are multiple possibilities. Let's suppose I have created one artificial wave, और वो तुम एक जगह पे खड़े रह के तुम या तो लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग ले लो, चलो एक स्ट्रिंग ले लो, और केस 1 है ये, और यहाँ पे कहीं पे एक सरफेस के साथ उसको बांध दिया तुमने. तो स्ट्रिंग का जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल, वो कुछ लेट्स सपोज सॉरी, जो स्ट्रिंग का जो तुम्हारा लेंथ है वो कुछ L पकड़ लो, और तुम यहाँ पे पहले पॉइंट A पे थे और पॉइंट B पे, तो ये थोड़ा स्ट्रेट बना देते हैं, ठीक है. अब तुमने उसको यहाँ से ऐसे डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब करने से उसने एक वेव जनरेट किया, तो वो वैसे ऐसे ऐसे करके आगे ट्रैवल करेगी. नाउ आई डोंट वांट टू स्टडी ऑल द वेव्स, बट आई वांट टू स्टडी ओनली वन पर्टिकुलर वेव. तो मैं किसी एक पर्टिकुलर बल्ज होता है ना, जब शुरुआत में तो ऐसे नहीं बन जाएगा, तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करना पड़ेगा स्ट्रिंग को, तब जाके ये वाला मोशन आएगा. लेकिन जब शुरुआत की बात करें, तो शुरुआत में पॉइंट ए से सपोज तुमने एक वेव क्रिएट किया, तो वो वेव क्रिएट होके कहीं पे ऐसे आगे ट्रैवल किया, तो तूने जो अप्लाई फोर्स किया वो ऐसे करके आगे गया, ठीक है. सो सपोज करो ये आगे मूव हो रही है, ए टू बी जा रही है, ठीक है. नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कैसे आए, तो there is a different possibility. So the only possibility here when I'm taking a fixed case, अभी क्या होने वाला है यहाँ पे, जैसे कि ऐसे लेट्स सपोज तुम्हारा वेव आगे गया था, जब ये इस पॉइंट को टकराती है, तो हमें न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन का लॉ कहता है कि जो भी तुम यहाँ पे फोर्स दोगे, वही फोर्स तुम्हें इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा. तो तुम्हारा जो वेव है वो जो रिस्पॉन्स देगा वो इक्वल होगा, लेकिन वो अपोजिट रिएक्शन देगा. तो क्या होगा, वो टकराएगा और फिर अपोजिट रिएक्शन देके वापस आएगा. तो जो वापस जो आएगा वो कुछ ऐसा रहेगा. Remember, if you observe the amplitude of the vibration, amplitude is the same, but it is in the opposite direction. So this is because of Newton's third law of motion. We have the equal and opposite reactions. Okay, so try to understand this part. So this is one of the ways, and that is nothing but the reflection. You can say a reflection of wave. Now, reflection of the which kind of wave? So this is nothing but a transverse wave. So we can just say
because we just study what happened to the transverse section, right? So transverse wave. Now reflection, what happened exactly? Reflection of the wave, pulse sent as a crest, and when it go to the rarer medium, to the denser medium, what exactly happened? It came back, but in opposite, with opposite amplitude, in opposite in the opposite direction. So let's try to take one more case. अभी मैं क्या करूँगा, सेम स्ट्रिंग लूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक रिंग के साथ उसको कनेक्ट करूंगा. तो यहाँ पे जो मैंने एक रिंग कनेक्ट किया, मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग जो है वो ऊपर नीचे जा सकती है. तो सेम केस में अगर मैंने क्या किया, वापस से एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया ऐसा कुछ, और ये वो वेव आगे प्रोपोगेट हो रही है. ठीक है, अभी क्या होने वाला है, जब ये सेम वेव आगे जाके इस रिंग तक पहुंचेगा, तो ये जो वेव है वो मोशन की वजह से वो पर्टिकुलर वो जो डिस्टरबेंस है वो ऊपर, ये जो रिंग है उसको ऊपर या तो फिर नीचे मूव करेगा. ये जब रिंग ऊपर नीचे मूव करती है, जो वो फेज होता है वो फेज को खा जाता है. बेसिकली वो फेज कहाँ जाता है, वो फेज आता है रिंग को ऊपर नीचे करने में. और उसकी वजह से जब वो जो वेव रिटर्न करता है वो रिटर्न करेगा, तो वो सेम एम्पलीट्यूड रिटर्न करेगा इन द सेम फेज एक्चुअली. तो वो जो हमारा रिस्पॉन्स था उसी तरह का दिखेगा. तुम्हें वापस से जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो उसी तरह का ऊपर की तरफ दिखेगा, ये पॉजिटिव साइड ही दिखेगा. क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन जो था वो रिएक्शन अभी कहाँ चला गया, वो जो रिएक्शन चला गया वो रिंग को ऊपर नीचे मूव करने में. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. तो यू कैन से कि the reflection of the wave pulse sent as a crest from the denser medium to the rarer medium. In this case, we have a ring which can move up and down. That's the reason the reflection is coming in this way. So there is one more possibility of the case, like case 3. अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक अलग अलग मीडियम कंसिडर करूंगा. ठीक है, अलग अलग मीडियम कंसिडर करूंगा, मतलब लेट्स से आई हैव हैवी स्ट्रिंग. so I'll just take it heavy string, case 3. So there is one heavy string, okay, and which is connected to the lighter string like this. Okay, so I'll say this is P string and this is Q string. Okay, so the connection start from here. So I'll just, okay, now what exactly happen is I just want to I assume कि वहां पे मैंने ऑलरेडी एक वेव प्रोपोगेट करा दिया, मतलब मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, एंड दैट डिस्टर्बेंस इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो दैट डिस्टर्बेंस समथिंग लाइक दिस. अभी क्या होने वाला है, ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा, और ये आगे बढ़ेगा और कौन से मीडियम को जाने वाला है, क्यू मीडियम को जानेगा. तो वो क्यू मीडियम को कैसे जाएगा, तो व्हेन इट गोस टू द क्यू मीडियम एंड कम बैक, तो ये जो है ये आगे जाके क्या होने वाला है. तो पहले तो लेट्स सपोज कि मैं ये मान के चलता हूँ कि ये वेव आगे प्रोपोगेट हो गई यहाँ से ऐसे. ठीक है, आगे प्रोपोगेट हो गई, उसके बाद आगे जाके ये क्यू में चला गया. जब ये क्यू में जाएगा तो क्यू से जाके वापस आएगा. ठीक है, वो वापस जो आएगा उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा. तुम इंट्यूटिवली बोल सकते हो ये, लेकिन वो जो आगे एम्पलीट्यूड जा रहा है, तो आगे जो उसका एम्पलीट्यूड जा रहा है वो क्या एम्पलीट्यूड सेम रहेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा मीडियम है वो चेंज हो गया है. ये डेंस मीडियम है, हम इसको डेंस मीडियम बोल रहे हैं येलो वाले को, और व्हाइट वाले को इसको थीन मीडियम बोल रहे हैं. ठीक है, तो जब तुम थीन मीडियम में हो तो तुम्हारा रिस्पॉन्स कहीं पे ऐसा कुछ जा रहा है. ठीक है, so this is how the response travel. Now when you do this kind of activity, what exactly happens is you are actually traveling from it is illustration of you are actually trying to understand कि जब तुम हायर मीडियम टू लोअर मीडियम जा रहे हो तब क्या हो रहा है. तो तुम खुद देखो क्या हो रहा है, जब हायर मीडियम टू लोअर मीडियम जा रहे हो तो तुम्हारा वेव आगे प्रोपोगेट तो हो रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड कम हो गया. ठीक है, और वो जब रिटर्न, देयर इज वन मोर थिंग, इफ यू सी, not entire wave get propagated. There's some part of the wave which get reflected back. Okay, which get reflected back. So remember this activity, this happened when you go from denser medium to the thinner medium. Okay, or you can say light medium, that's more appropriate word, I guess. Okay, now let me change the scenario. Now let's say the entire scenario, in that I have propagation of the wave started from the thinner side. So let's suppose ये P है, Q है, so ये white वाला portion है, यहाँ से मेरा wave propagation हो रहा है. तो मेरा बोला कि यहाँ से कुछ ऐसा wave है और ये propagate हो रहा है इस तरफ. ठीक है, तब क्या हो सकता है? So
तब क्या होगा, अभी तुम थीन मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश करोगे तो बेसिकली इंट्यूटिवली ये होना चाहिए कि आगे जाकर ट्रैवल करेगा, ऑब्वियसली ट्रैवल तो करेगा ही करेगा, लेकिन कैसे ट्रैवल करेगा, तो सिंपली उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि बेसिकली वेव क्या हो रहा है, वो सिर्फ प्रोपोगेट हो रहा है, करेक्ट, देयर इज नो फेज चेंज येट, बट जब ये आगे जाके वापस आएगा, सॉरी, so you should get something like this, but this is something when you are going like this, but that means यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ obstruction आया है, जब ये यहाँ से यहाँ गया, it has some obstruction because it is a denser medium, so there is some part of the wave which will be reflected back towards the thinner medium, lighter medium, तो वो जो reflection होगा, वो reflection क्या होगा, in opposite phase, इन अपोजिट फेज, और याद रखना एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाता है, मैंने इसको ज्यादा ही बना दिया है, सो एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, सो दिस इज हाउ द रिफ्लेक्शन कम बैक्स, ओके। तो ये तुम फील भी कर सकते हो, कैसे, तुम सोचो कि तुम पानी में बैठे हो, ठीक है, तो पानी में बैठ के तुम बाहर की तरफ किसी को बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम वेव प्रोपोगेट कर रहे हो, वही वेव आगे जाके क्या होने वाली, प्रोपोगेट होने वाला, पानी से बाहर आवाज जाएगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, ये एक हाइपोथेटिकल केस है, तुम ये भी सोच सकते हो कि मतलब तुम ये भी सोच सकते हो कि तुम एक वॉल की इस तरफ खड़े हो, वॉल की दूसरी तरफ कोई और बंदा खड़ा है, और यहाँ पे वॉल थोड़ा बंद है, दूसरी तरफ वॉल मतलब पूरा ओपन सरफेस है घर के बाहर, सो देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, सॉलिड ऑब्स्ट्रक्शन ये, सो देयर इज अ डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द वेव प्रोपगेशन। सो अगर मैं पानी का एग्जांपल लूं, तो पानी डेंसर मीडियम है और बाहर जो है एयर वो लाइटर मीडियम है, तो जो भी तुम बोल रहे हो वो उसको सुनाई तो देगा, बट एट द सेम टाइम पूरा नहीं सुनाई देगा, बहुत कम आवाज, तुम अगर चिल्ला रहे हो बचाओ बचाओ तो उसको सुनाई देगा बस, और कुछ नहीं। तो बाकी सारा वहां पे रिफ्लेक्शन जो भी है, वो सारा जो वेव का डिस्टर्बेंस वहां नहीं जा रहा है, तो क्या हो क्या रहा है, बाकी बाकी डिस्टर्बेंस तुमने क्रिएट किया वो कहाँ जा रहा है, वो पानी में वापस खींच के आ रहा है, तो वो क्या है, वही चीज तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाला जो प्रोपोगेशन है वो वही दिखा रहा है, बेसिकली ये जो प्रोपोगेशन है वो वही दिखा रहा है कि वो वापस वो उसी पानी में ही रह जाता है। उसके बाद अगर मैं ये सोचूं कि तुम बाहर वाला कोई इंसान कुछ बोल रहा है, बाहर वाला कुछ इंसान बोल रहा है और पानी में बैठा हुआ इंसान कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है, जो ये सेकंड केस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम थीनर मीडियम से वेव प्रोपोगेट कर रहे हो और सुनाने की कोशिश कर रहे हो अंदर वाले को, ठीक है, अंदर वाले को कुछ ना कुछ तो सुनाई देगा, इसीलिए तुम्हें ये वेव दिखाई देगी, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ उसने क्रॉस किया, बट एट द सेम टाइम पानी पानी डेंसर मीडियम इस वजह से जो तुम बोल रहे हो वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वो क्या होगा, वो बाउंस बैक करेगा, वो वेव बाउंस बैक करेगा, और वो तुम्हें सेम नहीं सुनाई देगा, थोड़ा कम सुनाई देगा, और तुम्हें एक डिस्टर्बेंस के बाद सुनाई देता है। So when you go to the swimming pool next time, try these activities, okay? So this is the behavior of the reflection of the wave. So when you talk about all these three cases, the most amazing is example 3. When we talk about the case 3, we find that crest जो travel कर रहा है heavy string get reflected as a crest from the light string, right? So this is reflection at the surface when wave is traveling from a denser medium to the rarer medium, cause the crest to be reflected as a crest. So this is these are actually theoretical words, but if you just understand it with the help of the basic example, it is more clear, I guess, okay? So with this I'll stop this video, and next class we will study reflection of the longitudinal wave, okay? Thank you.